What's up guys, my name is Abdul Nafe and welcome to the 21 podcast. ये बेसिकली मैंने एक नई पॉडकास्ट स्टार्ट की है जिसमें मैं डिफरेंट तरह के आर्टिस्ट्स हैं और एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको इनवाइट करूंगा और उनके साथ ज़रा डिस्कस करूंगा और उनसे पूछूंगा सवाल कि आपने कौन सी टेक्निक्स यूज़ की सक्सेसफुल होने के लिए, क्या आपका मेथड है, क्या आपका सॉर्ट ऑफ डेली रूटीन है। ठीक है, डिफरेंट तरह की हम बातें करेंगे ताकि जो नए आर्टिस्ट हैं, नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको इससे फ़ायदा हो सके और मैं पर्सनली अपने लिए भी ये कर रहा हूँ कि ताकि मुझे भी चीज़ें सीखने को मिले, राइट। तो आज हमारे जो गेस्ट थे वो थे CGI फोर्ज के हसन और तैमूर। CGI फोर्ज बेसिकली इज़ डिज़ाइन एजेंसी। ठीक है, लोग फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स लेते हैं, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स मेनली लेते हैं और फिर इनकी प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन और एनिमेशन वगैरह बनाते हैं। हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें की कि आप लोग क्लाइंट्स किस तरह लेते हैं, क्लाइंट्स को रीच आउट किस तरह करते हैं और सॉर्ट ऑफ उनकी प्रोडक्टिविटी मेथड्स क्या हैं और काफ़ी सारी हमने डिफरेंट बातें की हैं। तो अगर आप एक नए 3D आर्टिस्ट हैं या फिर आप एक ऐसे 3D आर्टिस्ट हैं जिसको क्लाइंट्स चाहिए, जिसको सक्सेसफुल होना है, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए परफेक्ट है और इस पॉडकास्ट को एंड तक देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, प्लस में हमने उनकी जो इनिशियल जर्नी थी, स्टार्ट किस तरह किया उन्होंने, वो भी हमने देखा सारा कुछ। वो भी हमने सारा डिस्कस किया। जैसे सॉर्ट ऑफ मुझे भी आइडिया मिला कि यार मतलब इतने हम्बल बैकग्राउंड से, इतना कम इक्विपमेंट के साथ उन्होंने स्टार्ट किया और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने बिल्डअप किया। तो आई थिंक उससे मोटिवेशन जो मिलती है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो ये पॉडकास्ट में स्टार्ट करने लगा हूँ। बी श्योर टू वॉच दिस टू द एंड और इस पॉडकास्ट का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको भी फॉलो करना मत भूलिएगा, @the21pod। मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा ये। ठीक है, सो या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। व्हाट्सअप गाइज, हसन एंड तैमूर, व्हाट्सअप, क्या चल रहा है? सुनाओ, क्या क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, क्या क्या कर रहे हो आजकल, मुझे ज़रा बताओ। Okay, Tamur, you start with this one. Okay, so currently we're working on a speaker animation. Right. Yeah, the one you saw. I see. Perfect, perfect. And like, okay, so let's start from the beginning, right? You guys have your own creative agency, Sure. right? It's an agency, right? Yep. CGI Forge, I'm assuming. Yep. Yes, it is. Yeah, perfect. So, how did you guys start that? What was the thought process behind that? What do you guys plan on achieving from that? And like, what's sort of the thought behind that? Mm. Okay, so basically, let me give you a little bit of background. In 2020, when I came back to my hometown, so what happened was Tamur was on Facebook. I didn't know him at that time. Right. I was just spying on him. I mean, literally like spying on him. Like, okay, what is this guy doing? What is this guy doing? And one fine day, I just reached out to him, like, hey, bro, I really like your work, but it can use some improvement. The guy was like, dude, I've been using Blender for a year. Like, what the hell? So during that time, what actually happened was we got to know each other, and then a strong friendship bond, turned out between us. And as time progressed, both of us started working together. He was giving me ideas, I was giving him ideas. We started making projects together, and then what actually happened was we both decided to start our own agency. Right. So you guys were in contact online, just online, not physically. Yeah. Yeah, Right. And where do you we've live? never met. Right. Where do you guys live? Okay. So I live in Lahore for now, Right. and Tamur is in Karachi. Right. Perfect. Okay, so you guys just get together and you guys decide to start an agency, right? So Yeah. आप लोगों का essentially जो goal था वो क्या था इसमें से? Like, what do you wanna get out of this? Do you guys wanna just focus on money, or do you guys want to sort of express yourself creatively? And was it a passion? How did you guys start? Hmm. Okay. So So should I? Tamur, Yeah, go Okay, ahead. so you start before with we your were working points. on Upwork, both of us, Right. and we weren't getting great results, especially since the gigs. I mean, sorry, the Connects update, which included more and more connects. So it wasn't working very well. So we started an agency properly outside of Upwork. Right. Now our goal is to make it one of the biggest agencies of product rendering and animation. राइट, सो एसेंशली आपका जो गोल था वो ये था कि यार शुरू में हमें अपर के प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं मिल रहे थे इतने ज़्यादा और कनेक्ट्स वाली जो अपडेट थी उससे काफ़ी काम ख़राब हो गया था। तो उसके बाद यू गाइस डिसाइडेड कि हमने अपनी अपनी एजेंसी बनानी है, राइट? तो उस एजेंसी में आप लोग क्लाइंट्स किस तरह ढूंढते हो? आप लोगों का सॉर्ट ऑफ प्रोसेस किस तरह का है क्लाइंट्स ढूंढने का? ब्रो ज्यादातर जो हमारा है वो कोल्ड आउटरीच के जरिए होता है. वी राइट। जस्ट सेंड अ ईमेल टू डिफरेंट कंपनीज. और हम लोग लीड जनरेशन कहाँ से कर रहे हैं? वी आर यूजिंग टू टूल्स, लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर एंड सेकंड ऑफ ऑल वी आर यूजिंग अपोलो. तो उससे राइट। यानी कि हम लोग लीड्स निकाल लेते हैं. लाइक, अच्छा, लेट मी जस्ट ऐड वन मोर थिंग टू द कन्वर्सेशन. व्हेन यू डूइंग लीड जनरेशन, यू नीड टू बी हाइपर स्पेसिफिक कि भाई आपने अगर क्लाइंट को टारगेट करना है, वो कौन है, क्या है और कितना उनका रेवेन्यू है. Like, let's say, okay, I want to reach out to a speaker brand
who is based in the US and is making like $1 million annually. तो यानी कि इतना हाइपर स्पेसिफिक आपको होना पड़ता है जस्ट टू फाइंड द राइट क्लाइंट. राइट तो वहां से हमें जैसे ईमेल्स मिल गई, वी जस्ट सेंड देम emails के hey we saw your product, we do this, so let's have a meeting together, and then we'll get the project Right. hopefully. Okay. So basically, you get you cold email them, right? लेकिन जो companies Yep. हैं, how do you find out about them? Like, how do you search for these companies? कि for example, जैसे आपने बात की कि $1 million annual revenue है company का, उसके अलावा headphones की company है, let's say, तो how exactly do you find these companies? Like, वो specific search किस तरह करते हैं आप? For that, Okay. we use LinkedIn Navigator. LinkedIn Navigator, right? Okay. सही सही मतलब डिफरेंट तरह के टूल्स है जो आप यूज़ करते हैं. और असल में ये मैं Yeah. पॉडकास्ट करने का रीज़न यही था कि असल में काफ़ी लोग जो मेरी वीडियोस वगैरह देखते हैं, द मेन प्रॉब्लम दैट दे फेस इज़ के उन्हें क्लाइंट्स वगैरह नहीं मिल रहे होते, उन्हें डिफरेंट टूल्स का नहीं पता होता. तो अब मुझे इनफैक्ट खुद भी मुझे लिंक्डइन नेविगेटर का नहीं पता था. तो आई थिंक इस पॉडकास्ट से काफ़ी अच्छा. बेनिफिट लोगों को हो सकता है कि यार आप लोग भी जो देख रहे हैं ऑडियंस, लिंक्डइन नेविगेटर इज़ अ रियली गुड टूल जिससे आप सॉर्ट ऑफ कंपनीज वगैरह क्लाइंट्स वगैरह फाइंड कर सकते हैं. तो अगर ज़रा मुझे आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना चाहें लिंक्डइन नेविगेटर की, हाउ डज इट वर्क, हाउ डू यू यूज़ इट, मतलब किस तरह आप यूज़ करते हैं सर? Okay, so if you have ever used LinkedIn, it's sorry. So it's sort of like that. लेकिन उसके अंदर क्या है कि आपको कुछ एडवांस फीचर्स मिल जाते हैं. Like राइट. you can find those people जिन्होंने यानी कि प्रीमियम मेंबरशिप ली हुई है लेकिन they have secured their accounts के वो सर्च के ना आए. ठीक है. सही. LinkedIn Navigator gives you that, number one. Number two, वो आपको बिल्कुल इन डेप्थ जाके आपको रिजल्ट्स निकाल के देता है. अब जिस राइट. तरीके से मैंने यानी कि अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दी थी कि if you use the term like okay it should be a headphone brand based in the US and making more than $1 million revenue, तो उसके राइट. अंदर क्या आपको डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे कि भाई जियोग्राफी, फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग अगर आप लिखेंगे तो वो फिर आपको खुद ऑप्शंस दे देगा कि ओके व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग इज दैट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर. तो आप यानी कि बिल्कुल इन डेप्थ जाके हाइपर स्पेसिफिक हो सकते हैं. राइट. मतलब उसमें स्पेसिफिक सर्च टूल्स आपको मिलते हैं. ठीक है. अच्छा. आप एग्जैक्टली. राइट, आपको क्लाइंट मिल गया आपको लिंक्डइन से, आपने उन्हें ईमेल कर दी है, उसके बाद प्रोसेस क्या होता है? हाउ डू यू सॉर्ट ऑफ टॉक टू द क्लाइंट, और मतलब उसको कन्विंस किस तरह करते हैं? ज़्यादा कन्विंसिंग लगती है या फिर क्लाइंट जो होते हैं जनरली वो किस तरह का आपको रिएक्शन मिलता है क्लाइंट से कि वो विलिंग होते हैं पैसे स्पेंड करने में? बजट के मामले में किस तरह का सीन होता है वो आप ज़रा मुझे एक्सप्लेन करें. Tamur, I think you can explain this part better than me. या श्योर श्योर. Excuse You're me, mute. sorry, I was mute. या No worries. So first of all, हम सेल्स कॉल्स पे लेके आते हैं क्लाइंट को. ठीक है. उसमें डिस्कस करते हैं क्लाइंट की क्या नीड्स हैं और उनको क्यों चाहिए हमारी हेल्प. And then we discuss if we are right to work together for each other. And pricing भी कॉल पे हम फाइनलाइज करते हैं and we start working. सही सही सही. एसेंशली आप कॉल पे आते हैं, आप उनके साथ बात करते हैं कि यार हम ये प्रोडक्ट आपको बना देंगे. आपको आई एम की पोर्टफोलियो का जो आप उन्हें दिखाते होंगे, ठीक है, पोर्टफोलियो आपने उन्हें दिखा दिया क्लाइंट को. वो आपको कोई है वेबसाइट है या फिर आप इंस्टाग्राम पे यूज़ करते हैं पोर्टफोलियो के लिए? नहीं, हम हमारी वेबसाइट वेबसाइट कल ही लॉन्च हुई है. अच्छा, कल लॉन्च हुई है. नाइस. यूआरएल क्या हाँ है? जी, cjforge.com. cgiforge.com. अच्छा, मैं अभी व्यूअर्स के सामने खोल देता हूँ वेबसाइट ये. cgiforge.com. एक्चुअली इस पॉडकास्ट को मैं थोड़ा सा वो बनाना इंटरेक्टिव बनाना चाह रहा हूँ कि हम कोई लिंक्स वगैरह अगर उनकी बात करें, किसी टूल्स की बात करें, तो वो साथ साथ हम देख भी पाएँ अपनी स्क्रीन पे. हाँ, gotcha. अब आई डोंट नो आपको मेरी स्क्रीन आ रही है नहीं, आई थिंक नहीं आ रही होगी, लेकिन मेरे पास आ रही है. नहीं. वेबसाइट लोड करिए. हम्म, चलें, जब तक ये लोड हो जाए तब तक हम बात करते हैं कि प्राइसिंग जो है, प्राइसिंग यूएस क्लाइंट्स की आप फिर मतलब किस तरह की रखते हैं कि ज़्यादा हाई एंड होती है या फिर थोड़ी लोअर एंड होती है, और डू यू गो फॉर समथिंग इन द मिड? हम्म. I Okay, would say so something in the middle. राइट. let me build upon your answer, Tamur. Basically, हमारी pricing जो है ना, it more so depends upon the client. Right. Like, I mean, obviously, we're not gonna charge mom and pop business like $1,000 per animation. I mean, that's या ludicrous. दैट डजंट मेक सेंस. लेकिन हम्म, लेकिन हाँ, अगर उसकी जगह हम लोग देखते हैं कि यार let's say a big brand like Beats reaches out to us कि यार we really like your portfolio and we want you guys to design us an animation, तो we can easily charge $5,000 from them. तो Right. इसी वजह से मैं यानी कि इस चीज पे बड़ा फोकस करता हूँ जो कि यानी कि 90% एजेंसीज नहीं करती कि ओके ये जो अब मैं बात करने वाला हूँ इसका कॉन्टेक्स्ट भी मैं आपको थोड़ा सा दूंगा. ठीक है. तो बेसिकली व्हाट इज दैट
कि एनुअल रेवेन्यू जब आपको पता होगा ना कि भाई हाउ मच सेल्स डज अ कंपनी मेक, देन यू कैन डिटरमिन द प्राइस एक्यूरेटली, कि उसको भी ना लगे कि यार दीज गाइस आर ट्राइंग टू स्कैम अस। और उसके अलावा सबसे बड़ी चीज ये है कि भाई ना हम अंडर पे हों। तो एग्जैक्टली उसके लिए नाउ अब ये मेंटालिटी कहाँ से आई, लेट मी गिव अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्टेक्स्ट व्हिच आई अर्लियर मेंशन्ड। बेसिकली देयर इज वन बुक जो कि तैमूर ने भी पढ़ी थी और मैंने भी पढ़ी थी, एंड दैट हेल्प्ड अस अ लॉट, डॉट कॉम सीक्रेट्स। डॉट तो कॉम सीक्रेट्स उसके अंदर रसल मैं ब्रंसन लिख लेता ने, हूँ, ये मैंने भी पढ़नी है बुक ज़रूर। हाँ, एक्सप्लेन करें। ब्रो हाईली रिकमेंडेड। ओके, तो सही है, परफेक्ट। रसल ब्रंसन ने उसके अंदर एक बात की थी, वो कहता है कि when you think a lot before going into a relationship, why don't you think about your client in that same way? Like, I mean, it's an obvious thing कि राइट अगर you're a male तो आपको XYZ किस्म की बीवी चाहिए, if you're a female तो आपको XYZ किस्म की बीवी चाहिए। तो एग्जैक्टली वो XYZ जो है, जिस तरीके से यानी कि रसल ब्रंसन ने ये बात की थी ना कि if you take your relation seriously, why don't you take your client seriously? Like you specifically know what sort of mate you want. Regardless if या you're a male तो आपको पता है कि यार XYZ मुझे चाहिए फीमेल के अंदर, एंड इफ you're a female तो XYZ मुझे एक मेल के अंदर चाहिए। तो वही जो XYZ है वही आप क्लाइंट के अंदर भी तलाश करो। Like राइट okay, my client should be like this should be his business and this should be his annual revenue. So राइट that changed the whole perspective for us, for like business in general. सही, मतलब लाइक आपकी जो क्लाइंट है उसके बारे में ज़्यादा रिसर्च करनी चाहिए। और मतलब रैंडमली काफ़ी लोगों का मसला ये होता है कि वो रैंडमली रीच आउट करते Mm, हैं क्लाइंट्स को। तो स्पेसिफिक रिसर्च mm, करो, उससे क्या होगा कि आपका जो सॉर्ट ऑफ सक्सेस रेट है ना वो बढ़ जाएगा, बिकॉज आप अपने एग्जैक्टली नैरो डाउन करेंगे। और डॉट कॉम mm, सीक्रेट्स, राइट, इस बुक का नाम था। या exactly. आई डेफिनेटली बी श्योर टू रीड इट आउट। Mm. ऑल्सो क्या कहते हैं, मैंने वेबसाइट खुल के देखी है, इनकी वेबसाइट की डिज़ाइन इज़ एब्सोल्युटली फिनोमिनल। आपने कैसे डिज़ाइन करी है, कहाँ से डिज़ाइन करी है वेबसाइट आपने? Well, actually, funny story. Actually, my younger क्या? brother is actually a WordPress designer. तो हम्म, हुआ ये था, एक दफा वो और मैं बैठे हुए थे, we were just having coffee। तो मैंने उसे राइट। कहा, मैंने कहा ब्रो यार अरसा हो गया मेरी वेबसाइट लाइव नहीं हुई। तो कहने लगा ठीक है यार मैं कर देता हूँ। तो अच्छा। आफ्टर लाइक 3 आवर्स उसने 6 टेम्पलेट्स डिफरेंट उठा के मेरे आगे रख दी, कहने लगा कि पिक वन। मैंने कहा यार तुझे जो मुनासिब लगे कर ले, बिकॉज मी एंड तैमूर वर एक्चुअली इन द मिडल ऑफ अ प्रोजेक्ट दैट टाइम। याद राइट। होगा तैमूर वुडू वाला। तो both of us were like mind boggled, like okay, we don't even have the time to properly sit down and take a deep breath. राइट। So in the end he was like, bro, I think this is the best template for you. I was like, okay, then go ahead. And literally I saw it after like 70% of development. He was like, yeah bro, तूने website check नहीं की? I was like, अच्छा दिखा भाई। When he showed me I was like, नाइस। और that was ऑनेस्टली my genuine reaction. व्यूअर्स को भी दिखाता हूँ, वेबसाइट के लिए काफ़ी अच्छी उन्होंने बनाई है ऑनेस्टली। द डिज़ाइन इज़ एब्सोल्युटली फिनोमिनल। लाइक जो कर्सर के एनिमेशंस हैं, डार्क मोड, लाइट मोड, इट्स जस्ट अमेजिंग यार। गुड जॉब, गुड जॉब। Thank you. परफेक्ट। और Thanks bro. आपकी 4 लोगों की टीम है, राइट? Hmm. Yeah. और बाकी जो 2 लोग हैं, जो 2 लोग हैं, उसामा खान एंड मुबश्शिर अमजद, इन लोगों के साथ आपका किस तरह कॉन्टैक्ट हुआ और हाउ डिड यू गाइस सॉर्ट ऑफ फाइंड देम? Okay. So let me tell you about Mubashir. Mubashir was actually my friend's younger brother. तो सिनेरियो इस तरीके से हुआ, द गाय हैड अ पबजी एडिक्शन। अच्छा। ठीक है, हाँ, तो दिस इज फॉर द गेमर्स आउट देयर, आई डोंट हेट यू गाइस, आई एम आल्सो अ गेमर, बट द थिंग इज इंस्टेड ऑफ पुटिंग लाइक 4 to 6 hours into a game, if you put that into a skill, it'll be much more डेफिनेटली, valuable. डेफिनेटली 100%। तो तो कमिंग बैक टू द स्टोरी, अब हुआ इस तरीके से था कि ड्यूरिंग दैट टाइम आई वाज इन माय होम टाउन। तो वहां पे इनका जो बड़ा भाई है हमास, वो आया, उससे पहले मेरे से कन्वर्सेशन की, कहने लगा कि ब्रो मैं बड़ा डिसाइड हुआ हूँ अपने भाई से, उसका मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, सारा दिन बस गेम्स ही गेम्स, गेम्स ही गेम्स, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, राइट। कैन यू बी हिज मेंटर? आई वाज लाइक श्योर, व्हाई नॉट, मेरी पहले जरा मुलाकात करवाओ ताकि मुझे उस बंदे की मेंटालिटी का आइडिया हो जाए, फिर उसके बाद ही मैं कोई जवाब दे सकूंगा। तो फ्रेंडली आई फाउंड आउट द गाय वाज अ गुड फोटोग्राफर। राइट। तो मैंने अच्छा, उसे अच्छा, तो यही वो कहा, मैंने आपका, कहा अच्छा, उसमें आपको सॉर्ट ऑफ, मैं आई एम सॉरी फॉर कटिंग यू, लेकिन मैं समझना चाहूँगा नो कि आपका प्रोसेस क्या था उसमें, कि हाउ डू सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड द गाइज इनर टैलेंट? बिकॉज असल में काफ़ी लोगों का मसला ये आता है ओके कि उनके पास, उनको सॉर्ट ऑफ अपना पैशन नहीं मिल रहा होता।
और वो इसी वजह से हम्म, टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा पैशन क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो आपने कैसे उसे हेल्प किया अपना पैशन डिस्कवर करने में? ब्रो, जस्ट बाय आस्किंग वन क्वेश्चन, मैंने उसे एक बात की, मैंने कहा कि यार इमेजिन कर कि मुबशिर, अभी तू जो है ना 70 साल का एक बुजुर्ग है, राइट। और ऐसा कौन सा काम होगा कि तू अभी अगर कर रहा होगा तो तुझे दिली खुशी होगी। हम्म। बंदा थोड़ी देर के लिए चुप हुआ, फिर उसने कहा कि यार इधर फोटोग्राफी या प्रोडक्ट फोटोग्राफी, मोर स्पेसिफिक उससे फिर कहा। आई राइट। वाज लाइक, ब्रो तेरे पास अभी कैमरा इक्विपमेंट है? ही वाज लाइक नो। मैंने कहा कि तेरे पास कुछ लाइटिंग सेटअप या कुछ है? कहने लगा नो। मैंने कहा तेरे पास फोन है? कहने लगा हाँ। तो मैंने कहा कि यार तुम फोन से फोटोग्राफी क्यों नहीं शुरू करते? कहने लगा यार हसन भाई मैं कर लूं लेकिन आई डोंट हैव प्रोडक्ट्स। मैंने कहा तो फिर भाई डू व्हाट आई डू, जस्ट कम इनटू 3D। वो फिर इस तरीके हम्म। के रैबिट होल के अंदर जब गिरा, उसे वाकई में भी डिस्कवर हुआ कि यार नहीं, 3D प्रोडक्ट एनिमेशन इज द थिंग दैट आई वांट टू डू फॉर माय लाइफ। राइट राइट राइट, बहुत एंड अच्छी, बहुत ऑनेस्टली इंस्पिरेशनल स्टोरी है ये। और हाँ, कंटिन्यू करें, सॉरी मैं इसके बाद बोलता हूँ। and the biggest thing of all, if you go to his Instagram, just watch his first render and watch his recent render. In a year, उस बंदे ने जो progress की है, Yep. I'm gonna be totally honest with the audience. Literally, मुबशिर का क्या है कि okay, let me tell you the whole thing about our team. हम Right. लोग सुबह के अंदर जिस तरीके से आते हैं ना, we actually have a WhatsApp group and a Discord group. तो WhatsApp group के अंदर हर कोई आके मैसेज डाल देता है कि boys I'm up, so let's start the work. तो हम लोग डिस्कॉर्ड के अंदर ग्रुप कॉल कर लेते हैं और वहीं पे स्क्रीन शेयर कर रहे होते हैं। तो अक्सर मुबशिर क्या करता है कि वो मुझे मैसेज करता है कि हसन भाई आई नीड यू ऑन द कॉल। मैं कहता हूँ ओके ठीक है, नो वरीज। अब जिस तरीके से हम कॉल पे हैं, मुझे कहता है हसन भाई आपको कुछ दिखाना है, एंड लिटरली 3 से 4 दफा उसने ऐसे रेंडर्स दिखाए हैं कि मैं खुद हैरान। मैंने कहा यार बंदे ने 1 साल में ये प्रोग्रेस कर ली, तो यार ये 4 साल में कहाँ पहुंचा हुआ होगा। राइट, माशाल्लाह और फन माशाल्लाह। पार्ट, ही स्टार्टेड विद द डोनट ट्यूटोरियल। अच्छा, नाइस। हाँ, मैंने भी डोनट ट्यूटोरियल से स्टार्ट किया था। सेम। ऑनेस्टली काफ़ी लोगों ने डोनट ट्यूटोरियल से स्टार्ट किया था। और मैं ऑनेस्टली मैं भी खुद भी ना, अभी अगर किसी बंदे को, कोई बंदा मुझे बोलता है कि यार मैंने इंग्लिश में सीखनी है 3D एनिमेशन, मैं उसे कहता हूँ यार सारे ट्यूटोरियल्स छोड़ो, डोनट ट्यूटोरियल देखो जाके, ही इज़ द बेस्ट। ऑनेस्टली उसका भी मुकाबला ही नहीं है ना एग्जैक्टली। इंग्लिश वाली मार्केट में तो। अच्छा, ये काफ़ी अपनी इंस्पिरेशन स्टोरी ऑनेस्टली मुझे बताइए। और लाइक आई एम श्योर कि ऑडियंस को भी, काफ़ी लोगों को, ऑडियंस में काफ़ी लोगों को इससे सॉर्ट ऑफ एक आइडिया मिलेगा कि यार अगर एक बंदा जिसको पबजी की एडिक्शन थी, अगर एक सिंपल सवाल अपने आप से उसने पूछा, उस सवाल से उसे सॉर्ट ऑफ एक डायरेक्शन मिल गई, और उस डायरेक्शन को उसने यूज़ किया, उसने मेहनत की, और आज वो कहाँ पे है। ठीक है, तो मतलब आई थिंक ऑडियंस को थोड़ा इससे थोड़ा सा लेसन लेना चाहिए कि यार मतलब ऑल दो रिसोर्सेज कम थे, ठीक है, लेकिन उसने तरीका निकाला कोई ना कोई। ठीक है, सो आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली। समथिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा गाइज, मेरी अजान हो रही है, लेट्स टेक अ 2 मिनट ब्रेक, ठीक है? ओके। थैंक यू। मैं भी नमाज पढ़ लेता सही। ऑलराइट, सो बेसिकली हम ओके। बात कर रहे थे जर्नीज़ की, ठीक है, इनिशियल जर्नीज़ की। तो आप लोग मुझे अपनी जर्नीज़ के बारे में बताएं कि आप लोगों को 3D एनिमेशन मिली कैसे, किस तरह आपने स्टार्ट किया, इससे पहले क्या करते थे, और आपका लर्निंग प्रोसेस क्या था हम्म, सारा। तैमूर, पहले यार तू इसका बता, फिर उसके बाद मैं हूँ। अपना ओके, बताता हूँ। ओके, चलो, ओके। सो हम्म, लेट 2019, ठीक है। आई स्टम्बल अपॉन द डोनट ट्यूटोरियल। और उस टाइम मेरे पास एक लैपटॉप होता था, बहुत लो एंड। ठीक सो है। उसकी स्पेक्स मैं बताता हूँ। इन हाँ। शॉर्ट, i5 थर्ड जेन एंड इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स, इंटेल HD 4000। नाइस। और रैम कितनी? उस रैम आई थिंक या 8 GB। 8 GB, ठीक है। तो उस पे मैंने स्टार्ट किया प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन और ब्लेंडर। मैं डिफरेंट स्किल्स एक्सप्लोर कर रहा था फॉर फ्रीलांस। तो बेसिकली आई हैव डन अ लॉट ऑफ स्किल्स इन दैट टाइम, लाइक फॉर एग्जांपल फोटोशॉप, या इसके अलावा शॉपिफाई, ड्रॉप शिपिंग, अमेजोन एट्सेट्रा, बिकॉज मुझे फ्रीलांस के अंदर आना था। सो मुझे ब्लेंडर का डिनो ट्यूटोरियल देखा, वो इंटरेस्टिंग लगा। फर्स्ट वो देखा मैंने, एक दो प्रोडक्ट रेंडर्स बनाए, एंड देन आई गॉट अ न्यू PC which was an i3 first gen, अच्छा but it had a graphic card, अच्छा NVIDIA अच्छा। Quadro. सही। Yeah, so उस पे मैंने फिर अपना मोस्टली काम किया था अप टू लाइक 6 months ago, जबकि मैंने अब रिसेंटली हाई एंड PC ले लिया है। तो उसमें मैं इमेज रेंडर्स करता था एनिमेशन, क्योंकि उसका मेरे पास वो नहीं था, हार्डवेयर नहीं था एनिमेशन रेंडर करने का। और उन्हीं दिनों 2021 और 2020 में मैं हसन से मिला था। तब मेरे पास वो सेकंड वाला पीसी होता था जिस पे इमेज रेंडर्स करके आई वाज डूइंग प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन फॉर क्लाइंट्स। अपवर्क पे इंस्टाग्राम के थ्रू मेरे को क्लाइंट आते थे तब। सही। नाइस नाइस सो यार, ऑनेस्टली इट्स वेरी रिफ्रेशिंग टू सी के मतलब आपने बहुत लो एंड पी से स्टार्ट किया और फिर आपने यू इवेंचुअली वर्क योर वे अप टू हाई एंड पीसी। अभी क्या स्पेक्स हैं आपके?
अभी हैं Ryzen 5 3500X 16 सही। GB रैम और RTX 3060 Ti। नाइस, माशाल्लाह, बहुत एंड अच्छा। द मोस्ट प्राउड मोमेंट मेरे लिए ये है कि मैंने अपने पैसों का लिया। हाँ एग्जैक्टली यार, माशाल्लाह, ये ये सबसे बड़ी बात होती है कि काफ़ी लोग कहते हैं कि यार हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, हम क्या करें। मैं उन्हें कहता हूँ कि यार जो है आपके पास आप स्टार्ट करो, ठीक है। इवेंचुअली आप पैसे जब कमाओगे फ्रीलांसिंग से, 3D एनिमेशन से, किसी भी स्किल से, तो फिर आप इवेंचुअली अपना सेटअप अपग्रेड कर सकते हो। और मतलब ये सबसे बड़ी ये चीज़ होती है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यार शुरू में जब आप स्टार्ट कर रहे थे तो ब्लेंडर आपने सॉफ्टवेयर क्यों चुना? मतलब और भी काफ़ी सारा सॉफ्टवेयर्स थे, आई थिंक माया और सिनेमा 4D ज़्यादा थोड़े फेमस सॉफ्टवेयर थे उस वक्त। क्योंकि मैंने भी I'll जब tell पहले you. शुरू किया था, मैंने लेट 2019 में मैंने भी शुरू किया था, लेकिन मैंने शुरू किया था सिनेमा 4D से, बिकॉज़ वो उस वक्त थोड़ा ज़्यादा फेमस अच्छा। सॉफ्टवेयर था। हाँ, तो फिर मैंने बाद में 6 महीने बाद ब्लेंडर पे स्विच किया। तो आपका सॉर्ट ऑफ थॉट प्रोसेस क्या था इसमें? Okay, so two reasons. राइट। फर्स्ट वाज ट्यूटोरियल्स उस पे बहुत सारे मिल रहे थे यूट्यूब पे फ्री, और मुझे सही। सिनेमा 4D और इन सब का आइडिया नहीं था। सही। सेकंड रीज़न पायरेसी का अवॉइड करने के लिए, क्योंकि ब्लेंडर फ्री सॉफ्टवेयर है और उन दिनों मैं गिम्प यूज़ करता था इंस्टेड ऑफ फोटोशॉप। अच्छा 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 अच्छा, सही। मतलब आपने वो पायरेटेड क्रैक्ड वर्जन ही डाउनलोड किया है? नो। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा हसन, आपका क्या स्टोरी है? आपने पायरेटेड ब्रो, सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने भी यार। ये यार तैमूर तैमूर पहला बंदा है जो मुझे मिला है जिसने पायरेटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं किया यार। यार मैं नहीं किए लिटरली हैं एक सही मैंने, बात बताऊं। बट आई ट्राई शुरू टू अवॉइड इट। राइट राइट ये राइट। शुरू के अंदर जब इसने शुरू के अंदर ये जब बात की थी ना, आई वाज लिटरली लाइक, यू फॉर रियल मैन। लिटरली मेरा ये एक्सप्रेशन था। खैर भाई, नाउ कमिंग टू माय स्टोरी, एक्चुअली व्हाट हैपेंड वाज, अबे यार ये लाइट किसने जला दी? जस्ट गिव मी अ सेक। हाँ, इजी इजी। अच्छा तैमूर, तब तक आप कोई व्यूअर्स को अगर मैसेज देना चाहेंगे तो आप दे सकते हैं। कोई अपना कोई श्योर। हाँ या। सो हार्डवेयर लिमिटेशंस आई मीन मैटर करती हैं, बट इतना मैटर नहीं करती जितनी आपकी डेडिकेशन हो। या और एग्जैक्टली यार एग्जैक्टली। डेडिकेशन होना चाहिए बंदे की। या, बैक टू यू ओके, हसन। so basically, let me give you a little bit of background. I'm basically a college dropout. So during अच्छा my first year of ICS, I dropped out. I was like, समझ में आ गया भाई, इसके आगे पढ़ाई करने का और कोई फायदा नहीं है। इतना आ गया कि भाई आई कैन रीड एवरीथिंग, आई कैन राइट एवरीथिंग, एंड आई कैन अंडरस्टैंड all of the languages, English, Urdu, and etc. But the thing सही। was, I was more so passionate about VFX at that time because राइट। a little bit of history. मेरे अपने कजन है फराज खोसा, ही हैज हिज ओन record label. तो ड्यूरिंग अच्छा। दैट टाइम उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। ही वाज लाइक कि ब्रो, तुम्हारा अगर ड्रीम है ना कि तुम एक वीएफएक्स आर्टिस्ट बनो, आई विल मेक इट अ रियलिटी। और अल्हम्दुलिल्लाह द गाय डिड एवरीथिंग फॉर मी। तो आफ्टर लाइक जिस तरीके से मैं ड्रॉप आउट हुआ कॉलेज से, तो मैं आ गया लाहौर। आई केम टू हिम, उनके साथ काम करता रहा। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम, यानी कि जो फर्स्ट ईयर मेरा चल रहा था वहां पे लाहौर के अंदर ही, तो माय फादर वाज लाइक कि बेटा देखो, आप जिंदगी में कुछ भी करो, आपके पास सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। मैंने कहा लो भाई। आई वाज लाइक ओके, सही। चलो भाई ठीक है, जैसा आपको मुनासिब लगे। तो वी रीच्ड आउट टू एनसीए। वहां पे डिपार्टमेंट मुझे समझ में नहीं आया उनका एनिमेशन का। देन वी अच्छा रीच्ड आउट टू अरीना मल्टीमीडिया। अच्छा। तो द गाय वाज लाइक, बहुत यानी कि कह रहा हूँ कि यार ओके, हम आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आई वाज लाइक ओके बिग शॉट, मुझे ये बताओ कि जो आपका 4 ईयर कोर्स है उसके बाद मैं कहाँ पे होऊंगा? लाइक व्हाट हैव योर प्रीवियस स्टूडेंट्स डन? तो उन्होंने पोर्टफोलियो दिखाया। आई वाज लाइक ओके। आई वाज लाइक सर हैव यू सीन माय वर्क? तो कहने लगे नो। मैंने फिर उन्हें, और उससे तकरीबन एक हफ्ता पहले हमारी एक वीडियो रिलीज हुई थी। दैट वाज माय फर्स्ट लाइक प्रॉपर वर्क एज अ वीएफएक्स सही। आर्टिस्ट। तो मैंने उन्हें वो दिखाई। तो द गाय वाज लाइक बेटा सॉरी, आप काम कुछ नहीं कर सकते। आई वाज लाइक ओके कोई बात नहीं। एंड द होल वे माय फादर वाज लाइक कि देखा, मैंने तुम्हें कहा था तुम पढ़ाई ना छोड़ो, ये ना करो, फलान ना करो, ढिमकान ना करो। द वेरी नेक्स्ट डे द प्रिंसिपल कॉल्ड माय फादर एंड ही सेड वन थिंग कि मेरी 2 मिनट हसन से जरा बात हो सकती है? आई वाज लाइक ठीक है मैं कर लेता हूँ। अब मेरी एक आदत वहां पे बन गई थी कि आई यूज्ड टू टॉक ऑन स्पीकर। तो मैंने स्पीकर खोला एंड द गाय वाज लाइक बेटा आप यहाँ पे पढ़ाना पसंद करेंगे? आई वाज लाइक नो, आई एम फाइन विद दैट। तो दैट वाज माय इनिशियल डेज। फिर कमिंग टू 2020 व्हेन आई गॉट इनटू 3D, व्हाट एक्चुअली हैपेंड वाज कि उस टाइम हुआ ये कि ज़ाहिर है कोविड हिट हुआ था। एंड
in my hometown, my parents were calling me कि भाई now you should just come back and be with us because उनकी old age हो गई थी. सही तो I was like okay ठीक है. तो I just came back. तो अम्मी ने यही कहा कि बेटा just don't go back now. I was like okay screw it. मैंने cousin को कह दिया कि from now on या तो हम remotely काम करेंगे या you guys find someone else. तो eventually they found someone else. Good for them. तो हुआ ये कि उन दिनों फिर मुझे डिस्कवर हुआ ब्लेंडर का. उस टाइम थोड़ा बहुत आइडिया था कि देयर इज अ न्यू सॉफ्टवेयर इन द ब्लॉक. अराउंड इन 2018 मैंने डिस्कवर किया था ब्लेंडर को. उस टाइम 2.79 था. एंड सही वी एक्चुअली डिड अ कमर्शियल फॉर एस मनी ट्रांसफर ड्यूरिंग दैट टाइम एज वेल अच्छा विद ब्लेंडर. राइट तो उसके बाद फिर करते करते इन 2020 आई गॉट सीरियस अबाउट ब्लेंडर. और उस टाइम लिटरली आई हैड जीरो सेविंग्स. तो अब्बू को मैंने एक बात की. मैंने कहा अब्बू जस्ट गिव मी 80,000 रुपीज. मैं अपना एक पीसी बनवा लूं. I'll return it to you within the next 2 months. अब थोड़ी सी बैक स्टोरी. During that time, I was totally into gaming. ठीक है. यानी कि if you would have seen my Steam library या if you would have seen my Discord, अगर आप उस टाइम यानी कि added होते तो हर थोड़ी बहुत नोटिफिकेशन आती कि भाई हसन playing this game, this game, this game, this game. Like after every 30 to 40 minutes, I was changing the games. You know, just to सही hyper stimulate myself. तो मेरा छोटा भाई जो है ही वाज टोटली अगेंस्ट इट. वो उसने सीधा कहा कि नहीं अबू आप इसे ना दे पैसे. इसने पीसी ही बनवाना है वो मुझे पता है लेकिन ही इज जस्ट गोना प्ले गेम्स एंड वेस्ट हिज टाइम. आई वाज लाइक ओके. तो मैंने अब्बू को एक बात की. मैंने कहा भाई आप कुछ भी करके मुझे दे दो. आई टुक दैट 80,000. मैंने पीसी बनवा लिया फ्रॉम मुल्तान क्योंकि क्लोजेस्ट एरिया हमें वही पड़ रहा था. राइट तो उसके बाद जिस तरीके से पीसी आया आई गॉट माई फर्स्ट प्रोजेक्ट विद इन द फर्स्ट मंथ. और उसके बाद आई जस्ट took those 80,000 जो यानी कि वहां प्रोजेक्ट्स है. एक्चुअल अमाउंट वाज 120,000. राइट तो 80,000 मैंने निकाले अब्बू के हाथ में रखे. मैंने कहा भाई अब ये मेरी मलकियत है अब इसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा. सो या दैट वाज द पॉइंट व्हेन आई स्टार्टेड. फिर 2021 के अंदर जाके यानी कि मैं जिस तरीके से अपवर्क पे टॉप रेटेड हुआ आई वाज लाइक कि यार नो नाउ इट्स टाइम टू बिल्ड अ टीम. अब थोड़ा एक्सपैंड करने राइट का टाइम आ गया. तब जाके यानी कि तैमूर मिला एंड वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर. राइट परफेक्ट परफेक्ट काफ़ी आपकी इंस्पिरेशन स्टोरी थी कि मतलब जिस इंस्टीट्यूट से आप सॉर्ट ऑफ आपने उसे रिजेक्ट किया इंस्टीट्यूट को, वो इंस्टीट्यूट आपको बुला रहा है कि यार आओ पढ़ाओ हमारे पास. मतलब ये सबसे इंसेन बात मुझे लगी. और ऑनेस्टली मतलब माशाल्लाह से इट्स वेरी सॉर्ट ऑफ रिफ्रेशिंग टू सी कि यार जहाँ पे पाकिस्तान के हालात इतने बुरे चल रहे हैं और हमें हर तरफ नेगेटिविटी देखने को मिल रही है, काफ़ी ये सॉर्ट ऑफ अच्छी चीज़ हमें मिलती है कि यार हमें यंगस्टर्स जो हैं हमारे मतलब वो काफ़ी काम कर रहे हैं अच्छा और काफ़ी मतलब सॉर्ट ऑफ मेहनत कर रहे हैं. ठीक है. तो आपने जो ट्रेडिशनल एजुकेशन वाला पाथ होता है वो आपने परस्यू नहीं किया. ठीक है. आपको उसके बारे में कोई रिग्रेट्स हैं कि यार मैं कोई डिग्री कर लेता ठीक है और उसके बाद उसके साथ ये काम करता या फिर मतलब उसका नहीं होता आपको? ब्रो देखो मेरी अभी जितनी भी सर्टिफिकेशंस है ना आई एम लिटरली टेलिंग यू दिस. और मैं ऑडियंस को भी ये कहूंगा अगर मैं उन सर्टिफिकेट्स को हाथ पे रखूं और उनके पे पकोड़े रख के भी खा लूं ना मुझे कोई गम नहीं होगा. राइट दोज आर जस्ट पीस ऑफ पेपर फॉर मी. एक सीधी सी बात है. सही बात है. आई मीन ब्रो वी ऑल आर 3D आर्टिस्ट. हमें अब तक जो भी क्लाइंट्स मिले दे नेवर आस्क्ड अस फॉर आवर सर्टिफिकेशन. कोई एग्जैक्टली एक क्लाइंट मुझे याद नहीं है. दे एग्जैक्टली लाइक ओके मतलब व्हाट कैन यू डू. राइट 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 मतलब लाइक ये होता है कि सॉर्ट ऑफ जो नॉलेज है ना वो आपको ऑनलाइन भी मिल सकती है. आप यूट्यूब से नॉलेज ले सकते हो. आजकल तो यार फ्री रिसोर्सेज पड़े हुए हैं हर जगह पे. ठीक है. फ्री है. आप थोड़ा $5-10 का आप एग्जैक्टली. कोर्स ले लेते हो अगर यूट्यूब से कहीं से भी, तो वो आई थिंक वो आपको आपके लिए काफ़ी वर्थ इट होता है. उसके अलावा आई थिंक एक जो चीज़ लोग कहते हैं क्या नेटवर्किंग वाला जो एस्पेक्ट होता है कॉलेज का वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि मतलब आप कनेक्शंस बिल्ड करते हो, आप सॉर्ट ऑफ आप लोगों से मिलते हो. ठीक है. लेकिन वो भी आपने यहाँ पे सॉर्ट ऑफ इस चीज़ को प्रूव किया है कि आपने एक टीम बिल्ड कर ली, आपने एक पूरा नेटवर्क बिल्ड कर लिया एसेंशली सोशल मीडिया से. ठीक है. तो आई थिंक वो भी चीज़ आप कर सकते एग्जैक्टली. हो आप विदाउट द यूज़ ऑफ एन एक्चुअल कॉलेज. ठीक है. तो आई थिंक अब ऑल्दो हम ये नहीं कह रहे किसी को भी कि आप भी ड्रॉप आउट कर लो बिकॉज ऑब्वियसली ये है कि काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जो कि ड्रॉप आउट करेंगे और उसके बाद वो नहीं कर पाएंगे कुछ बिकॉज हर बंदे का डिफरेंट स्टाइल होता है ना. लेकिन आई थिंक एग्जैक्टली. काफ़ी लोग होते हैं जो कि मतलब अपने आप पे ज़्यादा बेहतर थ्राइव कर सकते हैं. तो आई एम एज्यूमिंग कि आपने जब आपका जब स्ट्रगलिंग पीरियड था कि मतलब आप चीज़ें सीख रहे हैं साथ साथ आप काम कर रहे हैं तो उस वक्त आप प्रोडक्टिविटी काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी कि यार मैंने काम करना है. ठीक है. तो उस वक्त कोई मेथड्स वगैरह थे, कोई टेक्निक्स वगैरह थी जो आपने सॉर्ट ऑफ इम्प्लीमेंट की अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, या फिर आपने टाइम वेस्ट करना कम किस तरह किया, गेमिंग की जो आपकी एडिक्शन थी वो आपने किस तरह कम की, और अपना जो दिमाग था उसको 3D एनिमेशन पे एक गोल की तरफ किस तरह सेट किया आपने? ओके. तो बेसिकली यानी कि सिनेरियो जो हुआ था लेट मी जस्ट टेल दैट. अब इन 2021 यानी कि वो मेरा पीक मोमेंट था कि भाई नहीं अब यानी कि आई हैव टू गो अप. तो राइट उन दिनों व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि
मैं सबको अकाउंटेबल रखता था कि भाई हर कोई जो है डिस्कॉर्ड के ऊपर ग्रुप कॉल के अंदर आए और अपनी स्क्रीन शेयर करके रखे कि भाई पता चलता रहे कि भाई वो बंदा गेम्स खेल रहा है या सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा है या एनिमे देख रहा है या क्या कर रहा है। राइट अब हमने यानी कि सबने एक इतना स्ट्रांग बॉन्ड बना लिया था कि अगर हम लोग ये नहीं देखते थे कि यार हु इज द लीडर या हु इज द फॉलोअर। अगर यानी कि जिस तरीके से मैं अगर मिसाल गॉड ऑफ वॉर खोल के बैठ गया हूँ कि यार आई जस्ट वांट टू प्ले गेम्स फॉर लाइक 15 मिनट्स, और अगर तैमूर मेरे साथ कॉल के ऊपर है और वो देखता है कि यार नहीं हसन ने सुबह से कोई काम नहीं किया, तो ही हैज द परमिशन टू स्कोल्ड मी के ब्रो क्या कर रहे राइट हो। अकाउंटेबिलिटी वाला जो तो सारा जो पहली तो फैक्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली पहली तो ये चीज हो गई। बाकी फिर सेकंड ऑफ ऑल सारा दिन यानी कि काम शाम करते 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 मैं दोपहर के अंदर एक ब्रेक लेता था, cause माय फादर इज एक्चुअली डॉक्टर, तो वो शाम को 5 बजे से 8 बजे अपने क्लिनिक जाते थे। तो वो 3 आवर्स होते थे मेरे पास अपनी ब्रेक के लिए। तो मैं सारा दिन यानी कि काम करूं, इफ आई वेक अप लाइक 9 AM इन द मॉर्निंग आई वर्क टिल फजर। तो वो जो रिमेनिंग 3 आवर्स है वो मेरी पूरी ब्रेक होती थी। तो उसके अंदर यानी कि मुझे घर को भी देखना था, मुझे अपनी वालदा की भी टेक केयर करनी थी, छोटी सिस्टर को भी मेंटोरशिप देनी थी, और उसके बाद हर एक चीज को कवर अप करके यही 3 आवर्स होते थे जब मैं प्रॉपर रिलैक्स करता था। और उस टाइम वाकई में ऐसा लगता था कि यार नो आई डोंट वांट टू प्ले गेम्स। राइट मतलब वो हिम्मत ही नहीं रहती बंदे के दिन के एंड पे कि यार वो मतलब अब मैंने एग्जैक्टली रिलैक्स करना है। राइट अच्छा तैमूर वो आपकी क्या एग्जैक्टली अच्छा तैमूर आपके क्या सॉर्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी मेथड्स आपने यूज़ किए हैं, मतलब क्या चीज़ें आपने किस तरह से अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया है? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फोकस करता हूँ कि फर्स्ट थिंग इन द डे दिन स्टार्ट होता है तो कोई ना कोई प्रोडक्टिव चीज़ करूँ। ठीक है लाइक ब्लेंडर खोल लिया या फॉर अ पर्सनल प्रोजेक्ट या फिर कोई क्लाइंट का प्रोजेक्ट है तो वो पहले किया। सही और जो गेमिंग और बाकी चीज़ें होती हैं एंटरटेनमेंट की वो लास्ट दिन के लास्ट में रात के ओके टाइम कर रहा होता हूँ। तो ये चीज़ मुझे बहुत हेल्प करती है क्योंकि वंस आई स्टार्ट अ गेम और एनीथिंग लाइक अ सीरीज मैं रुका नहीं जाता। हाँ एग्जैक्टली मतलब वो सॉर्ट ऑफ आपका जो काम होता है वो आप पहले कर लो ताकि फिर आप बेशक बाद में गेम्स भी खेलते रहो या कुछ भी करते एक और रहो। चीज़ मैं या ऐड करना चाहता हूँ, सॉर्टिंग योर डेस्कटॉप। मैंने जितने भी गेम्स की आइकन्स थी वो मूव कर दी डिफरेंट फोल्डर में। और अच्छा सामने मैंने एक देयर इज अ थिंग वॉलपेपर इंजन का आपने शायद सुना हो। मैंने नहीं सुना। इट बेसिकली वो एनिमेट होके वॉलपेपर आपके डेस्कटॉप पे चल रहे होते हैं जो भी अच्छा आप अच्छा चाहें ना। सही तो उसमें मैंने लगा दिया प्लिंट्स, वो देखिए आपने अल्टरनेट रियलिटीज। नहीं देखी लेकिन आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो क्या है। ओके, सो वो 3D आर्टिस्ट चैलेंज है, टॉप 100 आर्टिस्ट फीचर कर रहे हैं उन्होंने ओके जिन्होंने एनिमेशन बनाई है राइट सेम उसकी। तो उसको मैंने वॉलपेपर लगा दिया। सो इट ऑलवेज अच्छा मोटिवेट्स मी टू से मतलब आपका जो गोल है सॉर्ट ऑफ वो आपने विजुलाइज करना शुरू कर दिया हर वक्त के, मतलब मैं हर वक्त उस गोल को देख रहा हूँ, जब भी खोलोगे आप अपने गोल को देखोगे ठीक है। मैं इस तरह की सिमिलर एक चीज़ करता था कि मैं कोट्स ना इंस्पिरेशनल कोट्स जो होते हैं वो अपने मेरे अभी फ़ोन पे अगर मैं दिखाऊँ आपको ये आई डोंट नो नज़र आ रहे हैं नहीं लेकिन लाइक लिखा हुआ है रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड। ठीक है कि मतलब आप अगर कहीं पे ऐसे आपको फील हो कि यार आपको मोटिवेशन नहीं है, ठीक है मैं कोई रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ कुछ कर रहा हूँ मतलब मुझे मोटिवेशन नहीं हो रही, तो मैं सोचता हूँ कि यार मतलब फ़ोन खोलता हूँ मैं देखता हूँ फिर कि यार मतलब मैंने शुरू किया था जो मेरा गोल था वो क्या था और उस गोल को मैंने फुलफ़िल करना है। सही है तो आई थिंक ये चीज़ें इस तरह की चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। हसन आपकी करते हैं इस तरह की एग्जैक्टली चीज़ें? ब्रो, मैं अगर एक ऑनेस्ट बात बताऊं ना, सिंस द पास्ट 2 years जब से यानी कि ये पूरी टीम हम लोग इकट्ठी हुई है, राइट द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर मी इज वन थिंग, पूरी टीम दे ऑल लुक अप टू मी। क्योंकि एज के अंदर ज़ाहिर आई एम द एल्डेस्ट, आई एम 26, राइट तैमूर इज 21, ओ मुबशिर इज लाइक 22 राइट नाउ। ब्रो, यू फॉरगॉट माय एज। हाँ Oh, okay, he is 69 years old. आई एम 19। यार बहुत देख गाइस आप देख सकते हैं बहुत यूनिटी है टीम में, एक दूसरे की एजेस ही नहीं पता। अच्छा Okay, तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि यार आई एम मोर टेक केयर ऑफ देम लाइक माय ओन यंगर ब्रदर अजान। तो उसकी वजह से क्या खुद ही दिल से एक मोटिवेशन आती है कि यार जब यानी कि बिल्कुल ही बंदा ड्रेन हुआ होता है, दिल से खुद ही एक आवाज आती है कि यार डू इट फॉर देम, डू इट फॉर योर टीम। Right. Perfect, perfect. Honestly, I think this has been a great podcast. We are at the, I think, 30-minute mark. काफ़ी अच्छी पॉडकास्ट रही, काफ़ी ज़्यादा आपको आपसे सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन वगैरह मिली काफ़ी। आई एम अज्यूमिंग के आई होप कि जो ऑडियंस है उसको भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी बिकॉज सबसे बड़ी चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहूँगा सबसे पहले वो ये है कि लिंक्डइन क्या आपने बोला था लिंक्डइन का कौन सा टूल था? सेल्स सेल्स नेविगेटर। नेविगेटर।
हाँ, सेल्स नेविगेटर एग्जैक्टली। तो वो टूल आप यूज़ कर सकते हैं क्लाइंट्स वगैरह ढूंढने के लिए। उसके अलावा कोल्ड ईमेल करें क्लाइंट्स को, जस्ट रीच आउट टू देम, ठीक है। और प्लस में स्पेसिफिक सर्च करें आप क्लाइंट्स के लिए। आई थिंक दैट्स समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और या थैंक्स लॉट फॉर योर टाइम गाइज। कोई आप कोई मैसेज देना चाहेंगे व्यूअर्स को आखिर में? Taimur, you start with that. I mean, I already gave one. कोई एक और दे दो ब्रो। कोई चीज़ आप मुझे बताना चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, कोई ऑडियंस को कुछ बोलना चाहते हैं? I would like to say something, Nafe. या आप मेरे लिए इंस्पिरेशन रहे हैं। अच्छा, थैंक आपकी यू। यूट्यूब वीडियोस देख के मैं भी मोटिवेट होता हूँ कि वीडियोस बनाऊँ एंड गेट ऑन कैमरा। थैंक सो यू। दैट्स वन थिंग आई वुड लाइक। थैंक यू वेरी मच ब्रदर, दैट मीन्स अ लॉट। और ऑनेस्टली मैं आप लोगों का काम देख रहा होता हूँ इंस्टाग्राम पे, काफ़ी आप लोग भी मुझे मोटिवेट करते हो। मैं आजकल थोड़ा कम बना रहा हूँ आर्टवर्क बिकॉज थोड़ी और चीज़ों में ज़्यादा चल रहा हूँ। असल मेरे एग्जाम्स भी चल रहे थे, आज मेरा एग्ज़ाम था आखिरी। लेकिन यह है कि अब इंशाल्लाह मैंने भी वापस गेम में आना है और कंपटीशन देना है आप लोगों को। हसन, आप की मैसेज देना चाहेंगे? मैं एक ही मैसेज दूंगा। आप जिंदगी में कुछ भी कर रहे हो ना, एक बात याद रखना, everything requires a sacrifice. राइट। I had to sacrifice my comfort zone just to reach over here. Taimur had to sacrifice his social anxiety just to come over here. Mubashir had to sacrifice his gaming just to come over here. हर चीज sacrifice मांगती है. Be ready to sacrifice, लेकिन उस चीज के लिए जिसका आपको 100% यकीन है that I can achieve this. राइट राइट, सही है, That's परफेक्ट। the बस message I will give. सैक्रिफाइस करनी है, डेडिकेशन कंटिन्यू रखनी है अपनी। और ये है कि बस जो अपने अंदर सॉर्ट ऑफ जो आग होती है ना, जो मोटिवेशन की आग होती है, उसको बरकरार रखना है। बिकॉज काफ़ी लोगों को ये होता है सक्सेस जब वो रीच Exactly. करते हैं तब उनमें वो ख़त्म हो जाती है चीज़। तो वो चीज़ ख़त्म नहीं होने देनी है, उसको कंटिन्यू रखना है। आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट मैसेज। और या थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग गाइज। थैंक्स अ लॉट तैमूर एंड हसन फॉर डूइंग दिस पॉडकास्ट। एंड या दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वन गाइज। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।